आज क्या करवाना है? मारी, what should we do today? Spicy? स्पाइसी चाहिए सबको, तो फिर मारी पे ही चलते हैं. वी विल टेक यू. फाइन. रिस्की एग्जाम्पल, इट इज रिस्की एग्जाम्पल. So listen the problem statement. Dr. Mari is having some issues. He is having multiple girlfriends at one time. And each girlfriend is asking gift from him of different amount. He cannot fulfill each one demands. So for that he wants to make one computer program. Because Dr. Mari has some limited stipend, he can only spend that much stipend on the gifts. If the girlfriends are asking more money than the available stipend, then he have to stop talking to them. So सही है ना भाई? रियल लाइफ एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ ना. रिसोर्स मैनेजमेंट. So what is the problem? What should be the input? The input must be the computer program must ask the stipend, current stipend should be asked by Dr. Mari. Let us say some number, it is stored in variable S. Let us say current stipend S. Then the computer program will ask current number of girlfriends. Suppose it is N. So the program should ask N times the price or the demand of gift. The demand of gift in terms of INR. How much money gift they are demanding each girl. After calculating demand of each girl, we should give some recommendation that, let us say, if this stipend is, let us say 10,000 is the stipend. First girlfriend wants gift of rupees 2000, GF1, number 1. Second wants gift of rupees 5000, GF. Third wants, let us say 2000, GF. And N was, let us say, total number of girlfriend he is having is 5 currently. So fourth will want, let us say, gift of again 3000. So, and fifth one wants gift of, let us say, 2000. Girlfriend number 5.
So computer should take the gift amount and they should tell that as we add up the cost, 2 plus 5 7,000, now 9,000, here it is 12,000. So the computer must recommend that drop the girlfriend 4 and 5. Whenever the cumulative is going above this S stipend, S, whenever the cumulative is greater than S, means S is less than cumulative expenditure or demand, then the computer program must give some indication. अपनी वो चादर से पैर ज्यादा मत फैलाओ. Got the problem? You want to help Mari or not by building this program? No? Otherwise he will go bankrupt without this computer program. Right or wrong? So we are saving his, one we can say, financial condition, we are helping him. No? बनाओ भाई, प्रोग्राम बनाओ. इसमें फॉर लूप लगा सकते हो, ठीक है. फॉर लूप से आसानी से हो जाएगा. ब्रेक भी यूज कर सकते हो. You can use break also when the cumulative demand is more than the stipend, then we can break the loop. प्रोग्राम देख लो भाई. इसका हाउ शैल वी स्टार्ट, n इक्वल्स टू इंट इनपुट enter number of girlfriends. S equals to int input enter stipend. For I in range 1 to n plus 1. सम भी लेना पड़ेगा ना कुछ, तो यहां से ले लो. सम इक्वल्स टू 0. G इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर डिमांड of girlfriend number I. Understood this line G equals to int. Then what we will do, sum equals to sum plus G. If sum is greater than कितना, ये समझ नहीं आएगा. प्रोग्राम नहीं किया तुमने. विवेक क्या नाम है तुम्हारा? नीरज. हाँ, हो गया क्या प्रोग्राम? नहीं हुआ? पहले बोल रहे थे हो गया. पहली 2 लाइनें समझ में आ गई? लूप समझ में आ गया कहां से कहां तक चल रहा है? जी वाली लाइन आ गई. जी इक्वल्स टू इंट इनपुट, या ये क्या है? जी के अंदर क्या आएगा? गर्लफ्रेंड नंबर जो भी पर्टिकुलर रहेगा वो कितने का गिफ्ट डिमांड कर रही है. सम इक्वल्स टू सम प्लस जी आ गया, क्योंकि सारे गिफ्ट को हमें सम करना पड़ेगा. अब जो सम है वो किस से बड़ा अगर हो गया तो कोई दिक्कत आएगी. किस से? ठीक है,
कि अगर ये सम है, अगर एस से बड़ा हो गया ये वाला जो स्टाइपेंड्स है तो कुछ दिक्कत आएगी हमारे। तो ये बोलेगा कि प्रिंट क्या बोले, रुक जा, इनफ इज इनफ, इनफ आउट ऑफ लीग, इनफ इज इनफ, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज प्रिंट करवा रहा हूं मैं, प्रिंट यू कैन हैंडल I-1 गर्लफ्रेंड्स ब्रेक। देखो ध्यान से क्या हो रहा है। यू कैन हैंडल I-1 गर्लफ्रेंड्स। देखो यहां पे क्या हो रहा है, किसी को डाउट है तो, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, नो डाउट, सत्या बताओ। ब्रेक कब चलेगा? ये सम ग्रेटर देन, यहां ये जो प्रिंट वाली लाइन है ये क्यों लिखी? प्रिंट यू कैन हैंडल I-1 गर्लफ्रेंड्स, I-1 क्यों किया? हाँ, क्योंकि अगर I ले लेंगे तो सम से ऊपर चला जाएगा, इसलिए हमने हमने कहा कि I-1 रखो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें ऐसे करो, जो ये एरर आ रही है वो सही कह रहा है, एरर आ रही है ना, तो इसको ऐसे कर लो, या तो ये उड़ा दो या तो ये चीज उड़ा दो, ठीक है। मैं इसको वैसे लिख देता हूं, या तो ये चीज डिलीट कर दो कोमा I, या फिर अगर ये प्रिंट करवाना है तो इसकी जगह ये ऐसे कर दो, एंटर डिमांड ऑफ गर्लफ्रेंड नंबर इन्वर्टेड कोमा प्लस STRI, ठीक है। इसकी जगह पूरे की जगह I तक ये लगा दो, ठीक है। अरे भाई ये है ना सर, एंटर द डिमांड ऑफ जीएस। अच्छा 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 अच्छा, ये इस तरफ I का वैल्यू इधर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो हालांकि प्रोग्राम तो रन कर रहा है। हाँ हाँ, अगर वो वाली चीज करनी है तो इसके आगे इन्वर्टेड कोमा अगर ऐड या कोई वैसे कॉलन ऐड करना है तो ऐसे कर सकते हो, प्लस प्लस ये ऐसे, ठीक है। मतलब कि अपनों ने तीन चीजों को एक बना दिया, पहले एंटर डिमांड ऑफ गर्लफ्रेंड नंबर, फिर ये नंबर आ गया और उसके बाद जो कॉलन है वो आ गया, फिर वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग से दिखेगा। तीन चीजों को अपनों ने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसका वैसे आगे आएंगे स्ट्रिंग वाले। असाइनमेंट नंबर 5 का पहला और दूसरा कर लेना, इजी है।
Third question I am discussing. Assignment 5, question number 3. Now the next topic is nested loop. Means, for example, we had nested if inside one if. Now we will have loop inside one loop. So for the example, print the star pattern like this: 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Now one way we can print this star program is simply by print star /n */n. Are you getting my point? ये समझ में आया? /n का मतलब होता है एंटर। तो इसको प्रिंट करवाने का एक सीधा तरीका है, 1 स्टार फिर एंटर मारो, फिर 2 स्टार, फिर एंटर, फिर 3 स्टार, ये प्रिंट हो जाएगा। राइट? इफ एनीवन इज हैविंग एनी इशू इन दिस प्रोग्राम, देन आस्क मी। इफ वी कैन डू दिस प्रोग्राम विद 1 line, then why we are complicating things? How we are going to do this is by using nested for loop, nested loops. To understand the concept of nesting, it is very much used in matrix programs, 2D matrix. Nested loops are very much used. So what we can do is that, what we do for this code is, for I in range one से this is how we do this program. Understood? Huh? Easy method is good. Now you question the existence of God. What do you not understand? Navneet. And equals to only 2 single quotes is there. You can use space in between, but no need of space also. But 2 single quotes are there.
You did not understand this concept of this, why we are using this and there. What else? What else you did not understand? Why did we use this empty print? इसका ब्रेकडाउन देखो कोड का. लुक what is going on here. See what is going on here. This is the I loop. In each iteration, value of I will be what? First it will be 1, then it will be 2, then 3, then 4, then 5. When the value of I, let us say in this iteration, in the first iteration, I am talking about this iteration, I is 1, now this loop will get executed. Right? When I is 1, the loop will get executed. J value will be from what to what? Huh? 1 to 2? 1 to 2? 1 ही खाली बचेगा. Any doubt? क्योंकि वो i+1 तक चलता है. वो फॉर लूप वाला देखना लेक्चर, इससे नहीं पता लगे. अंडरस्टूड? दिस फर्स्ट आइटरेशन, j's value is 1. When we are on the first iteration of I, the j's value will be this one. And this will be printed once. Now what is happening? This has printed now. Now what will happen? इसको बताते हैं यार. I will go into the next iteration. Wait, before going to the next iteration, this will get printed. Means next line. Understood or not? I equals to, in the first iteration, j was 1. After printing star once, this will get executed. Next line is executed. So now we have come at this point. Then the i's loop will continue. Means I will be equal to, in the second, now we are in the second iteration of the I. So what is going on? J's value will be from what to what? 1 and 2. J iteration, this loop will execute 2 times, 2 iteration. 1 and 2, 1 and 2, 2 times star will be printed. After printing 2 times, this will get printed. It means come to next line. After that, we will go to the starting of this i's iteration. I will be equals to 3. This is the third iteration. In the third iteration, the value of j will be
जे की वैल्यू 1 to 4, मतलब कि 1 2 and 3 in each iteration of j, and in each iteration we will print star, means 1 2 3. 3 stars will be printed. After that j loop will be finished, we will come back and next line will be printed. Means i's value will be upgraded to 4 and j's value will be 1 2 3 4. Means star will be printed 4 times, then next line will be printed, i's value will be 5, j value will be 1 2 3 4 5. In each iteration star will be printed and next line, and then i's loop will be finished. This loop will finish. End of program. How many of you did not understand what is going on? हैं? बनाओ फिर इसको. बना लिया? चल गया? डन? अच्छी बात है. क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब हम ये करते हैं प्रिंट, मान लीजिए कि हम ये करेंगे तो क्या होगा कि लास्ट में स्टार के बाद एक एंटर दब जाता है बाय डिफॉल्ट. हम कोई भी मान लीजिए जैसे प्रिंट हमने ये लिख दिया, अगर मान लीजिए ये मैं 2 लाइन कंप्यूटर के प्रोग्राम में लिख के चलाता हूं तो आउटपुट में ऐसा आएगा, ये स्टार और ये स्टार, ये आउटपुट में आएगा. उसका मतलब ये है कि एक बार स्टार प्रिंट हुआ, फिर एंटर प्रिंट हुआ, फिर एक बार स्टार प्रिंट हुआ. लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसकी जगह ऐसे और ऐसे प्रिंट करना है. तो फिर हम बोलेंगे कि इसका जो अंत है, इसका अंत जो है वो खाली कर दो. मतलब कि ये वाला जो चीज है वो प्रिंट मत करवाओ. क्योंकि हमने लूप में प्रिंट करवाना है ना, हमने तो सीरीज में करवाना है कि एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद उसके साथ हम कराएंगे, नेक्स्ट लाइन में नहीं करवाना हमने. उस चीज की कमांड है ये एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स है. वरना अगर 2 का लूप चलता तो ऊपर फिर नीचे जाता. अगर ये एंड नहीं लगाएंगे तो सारे स्टार लाइन में आएंगे. क्योंकि हर एक के बाद एंटर प्रिंट होएगा. फिर प्रवीण समझ आ गया ना ये? अगला प्रोग्राम देखो भाई, इसी के आधार पे बनाते नहीं तो मैं एग्जांपल वो ही देंगे. अगला प्रोग्राम देखो. नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू प्रिंट दी स्टार पैटर्न, जो क्वेश्चन नंबर 4 था. 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ असाइनमेंट नंबर 5 ये बनाओ. हो गया? अच्छी बात. सबका हो गया क्या? अगला स्टार पैटर्न शताक्षी के लिए स्पेशल, सेम ही चीज है. 2 3 4 5 3 4. वैसे तो 4 का होना चाहिए था, तो तुम यही कर लो. 5 का कर लो चाहे 4 का कर लो. ये 5 का ही करो यार. 5 एक्चुअली
नहीं नहीं, अभी भी तुम नहीं समझे। जब तुम ऐसे एक बार ही तो तुमने किया i 1 से i प्लस 1, अगली बार तुमने कर दिया रेंज i। इसमें इस चीज में क्या होता है, ये 0 से i माइनस 1 तक चलता है, 0 से i माइनस 1 तक, और ये चलेगा 1 से i तक। तो नंबर तो सेम ही रहेगा ना, वो 0 से 1 पहले हो गया, वो हो गया। तो या तो इसको भी 1 से i तक चलाओगे तो कम चलेगा, ऐसी कहानी। हमें पता है कि 2 लूप लगेंगे फॉर i फॉर j, ठीक है। i जनरली क्या बताता है, नंबर ऑफ लाइन, इंडेक्स ऑफ लाइन बोल दो। जैसे कि हर एक आइट्रेशन पे i की वैल्यू अगर 0 से चालू करनी है, मैं अब 0 वाला चालू करता हूं, 0 1 2 3 4, ये i की वैल्यू है। ये इसको मैं ब्लू में कर देता हूं, i की वैल्यू है 0 1 2 3 4। i का लूप चलाएंगे अपने इतना, चलना 5 बार ही है, 0 से 4 भी चल सकता है, 4 से 0 भी चल सकता है। अभी मैं चला के दिखाऊंगा। अच्छा, j की जब बात होती है, j हर एक लाइन में कैरेक्टर का वो इंडेक्स रहता है। तो मान लीजिए j की वैल्यू है 0 1 2 3 4, ये j की है। अब ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। कैसे? फॉर i अगर मैं 0 से 4 करवाता हूं, 0 से 4 तो तुम कर ही सकते हो, इन रेंज 0,5, 0 से 4 है। जब 0 है, i 0 है, तो j कितनी बारी चलना चाहिए? 5 बारी चलना चाहिए। जब i 1 है तो j कितनी बारी चलना चाहिए? 4 बारी चलना चाहिए। जब j i 2 है तो कितना चलना चाहिए? अब क्या हो रहा है यहाँ पे, i j, जब i की वैल्यू की बात चल रही है, ये i की वैल्यू है और ये आइट्रेशंस है, कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन चलना चाहिए। जब i की वैल्यू थी 0, ये चलना चाहिए 5 बारी, नंबर ऑफ आइट्रेशंस। i की वैल्यू आई 1 तो ये चलना चाहिए 4 बारी। वैल्यू और आइट्रेशन अलग अलग चीज है। i की 5 आइट्रेशन है जिसमें वैल्यू ये चल रही है। जब i की वैल्यू आ गई 2 तो यहां 3, ठीक है। एक चीज सोचो, जो ये हम कहानी बना रहे हैं, चलो इसको पूरा ही कर देते हैं, i j वैल्यू और ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस। i की वैल्यू है 0 1 2 3 4, j कितनी बार चलेगा? 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये सोच के देखो, इन दोनों का एडिशन कितना है? इन दोनों का एडिशन कितना है? मतलब कि पैटर्न ये चल रहा है कि j जो है, मैं क्या कर सकता हूं, 5 से i तक चला सकता हूं। देखो तो कितनी बार चलेगा? अगर मैं 5 से 0 तक चलाता हूं लेटर से, तो 5 बार ही चलेगा। 5 से 4 नहीं था, 4 आइट्रेशन, अब 5 से i तक चलाना है और i की वैल्यू है 1, तो 4 आइट्रेशन चलेगा। अगर मैं चलाऊंगा इस केस में 5 से 2 तक, 2 तक, इस आइट्रेशन ये 2 बारी चलेगा ना, ये 3 बारी चलेगा। समझ में नहीं है गाड़ी, या पता नहीं लगा? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 5 टिल द वैल्यू इज i, इतनी बार चलेगी आइट्रेशन, इतनी बार चलानी। इसमें कोई अभी तक डाउट है तो वो प्रिंट करवा लेना, ठीक है। इसमें कोई अभी तक डाउट हो तो फ्रॉम 5 टिल i,
इसमें कोई डाउट हो तो बताओ अभी, या दोबारा बताऊं इसको? दोबारा तो नहीं बताना ना, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग खराब होएगा। रुको, हैं? हाँ, 5 से लेके 0। हाँ जैसे, हाँ बोलो भाई। मान लीजिए पहली बार आई की वैल्यू क्या है? 0 है। 5 से लेके 0 तक चलाऊंगा, कितनी बार चलेगा? लेटर से 5 बारी, वैसे 6 बारी चलेगा। कोई i+1 कर देना, 1 तक चला देना, ठीक है। आई की वैल्यू जब वो 5 बारी चल गया, जे 5 बारी स्टार प्रिंट हो गए, उसकी अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 5 से 1 तक चलेगा, फिर कम हो गए, फिर नंबर ऑफ स्टार। अगली बार आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो भाई जे तो 5 से चालू कर रहा है, पहले 5 से 0 तक जा रहा था, अगली आइट्रेशन में 5 से 1 तक जाएगा, फिर अगली आइट्रेशन में 5 से 2 तक जाएगा, 5 से 3 तक, 5 से 4 तक, ऐसे करके। तो पहली आइट्रेशन में बहुत ज्यादा कवर हो रहा है, ये वाले बहुत ज्यादा प्रिंट हो रहे हैं, सेम चीज चल रही है, समझिए। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? सताक्षी, ऐसे ही बनाया था क्या कोड तुमने? मेरी कोडिंग लाइक ऐसे रेंज 5,0,1 उसके बाद जे की रेंज ली 1 से लेकर i+1 तक। आई क्या रेंज ली थी? 5,0,1 5 से लेटर से 0 तक, और फिर जे क्या ली थी? 1 से लेकर i+1, मतलब 1 से लेकर i+1। 4 भाई क्या हो रहा है? सत्य, ये देखो इसको ध्यान से, ये सेम पैटर्न इससे भी चल जाएगा। इसने क्या किया है, J1 से चलोगे, आई चलाया 5 से 0 तक, 5 4 3 2 1। जे चलाया है i1 से i+1 तक, मतलब कि पहली बार 1 2 3 4 5। समझिए, ये चीज समझाने की जरूरत है क्या कि ये सही क्यों काम कर रहा है? पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी 5, जे चलेगा 1 से लेके 5 तक, फिर आई की वैल्यू होगी घट गई, तो फिर जे भी कम आइट्रेशन लेगा। समझिए, मतलब कि ये 2 सॉल्यूशन तो है ही। अगला पैटर्न पता लग गया ना? नेक्स्ट पैटर्न क्या है? दो 3 4 5 6 2 3 4 3 1 2। ये पैटर्न है, ये कैसे प्रिंट करवाएंगे? आई तो अपने 5 बारी चलाना है, 0 से 4 चला दो, 4 से 0 चला दो, 1 से 5 चला दो, 5 से 1 चला दो, तुम्हारी मर्जी है। जैसे कि मान लीजिए आई मैं चला देता हूं, 1 से चलाऊंगा 0 से, मान लीजिए 0 से 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये पिरामिड इस प्रकार से ऐसे बना है कि यहां पे एक स्पेस है, यहां पे 2 स्पेस है, यहां पे 3 स्पेस है,
और यहां पे 4 स्पेस है। मतलब कि जब i इक्वल्स टू 0 हो, जब i और मैं ये बोलूंगा स्पेस और स्टार, जब i की वैल्यू 0 हो तो 4 स्पेस प्रिंट होने चाहिए और 1 स्टार प्रिंट होना चाहिए। यहां पे 3 2 2 3 3 1 4 4 0 5। जब i की वैल्यू ये हो तो इतने नंबर ऑफ स्पेसेस और इतने नंबर ऑफ स्टार्स। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि 4i इन रेंज सीधी लिख दूंगा मैं यहां पे 5। जब मैं ये लिखता हूं, ये एक शॉर्टकट मान लो, तो ये 0 ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज करता है जब आप एक आर्ग्यूमेंट देते हो। तो ये आएगा 0 से लेके 4 तक। अगर आपको 1 से चलाना है तो यहां पे 1 कोमा लगाना पड़ेगा, 1,5। i की वैल्यू आएगी 0 से लेके 4 तक। अब हमें 4j इन रेंज हमें पहले करवाना है स्पेस प्रिंट। स्पेस हमारा प्रिंट होना चाहिए कितनी बारी? 4 बारी होना चाहिए। और वो i के रिलेशन में क्या होना चाहिए? i क्या है? i -5। हाँ हाँ, मैं कहता हूं कि ऐसे कर दूं मैं, 4 माइनस कर दो, 4 माइनस i। देखो फोर माइनस आई इतने रिलेशन में चल रहा है। पहली बार कितना चलेगा ये? जब i 0 होएगा तो ये चलेगा 4 बारी चलेगा, 0 1 2 3 4 बारी चलेगा। तो ये 4 बारी चल गया। जब i की वैल्यू हुई 1 तो ये चल गया 0 1 2 3 बारी चल गया। जब i की वैल्यू हुई 2 तो ये कितनी बार चल गया? 0 और 1 2 बारी। यहां वैल्यू और यहां नंबर ऑफ आइटरेशन है। और यहां पे मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट स्पेस एंड इक्वल्स टू कुछ नहीं बीच में। ये तो था सिर्फ स्पेस प्रिंट करवाने की। वही सेम चीज अपनों ने की है। ये वाला वो सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न है ये वाला। वो स्टार प्रिंट करवाते थे, यहां पे स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं। जब हमने स्पेस प्रिंट करवा लिया उसके बाद हम स्टार प्रिंट करवाएंगे। तो स्टार के लिए क्या करेंगे? 4, वैसे तो जे भी ले सकते हैं पर मैं अलग ले रहा हूं, 4k इन रेंज i+1 करवा दो। प्रिंट स्टार एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग देन प्रिंट। बोलो सर वो 4 माइनस आई करेंगे हैं? और 4 माइनस आई करेंगे हाँ हाँ तो 4 माइनस 0 को प्लस देंगे। हाँ हाँ। तो अब 0 1 2 3 4 बारी चलेगा, 4 बारी स्पेस प्रिंट हो गया। देखो ये चला गया,
चलिए क्या? इनका रिलेशन तो ये है ही +1 है, तो यहाँ पे i+1 है। ये चलो छोड़ो, किसी को अभी भी डाउट हो कि ये 4 - i क्यों आया है, या i+1 क्यों आया है, या 5 क्यों आया है? For j इंक्रीमेंट इट विल बी, हाँ डिक्रीमेंट, हाँ सो 4 0 तक कर लो ना, दैट यू डू बाय योर सेल्फ। i-1 कहाँ तक चलना है ये? 0 तक या क्या? -1 तक, -1 तक, -1। दिस इज फाइन मारी, चेक। 4 - i -1 -1। सत्या समझ में आया ना? -1 पहले वाला -1 इसलिए आया है क्योंकि लास्ट डिजिट है 0, 0 से एक पहले वाली -1, और हर एक आइट्रेशन पे j की वैल्यू जो है कम डिक्रीज होनी चाहिए ना। हाँ भाई मान लीजिए कि तुम ये कह रहे हो कि ये वाला क्यों लिया है, 4 - i -1 -1, इसमें मान लीजिए कि i की वैल्यू 0 है पहली आइट्रेशन में, तो ये उड़ा दो एक बारी, चलेगा 4 से कहाँ तक चलना चाहिए? 3 2 1 0 तक चलना चाहिए ना, तो ये -1 ये वाला डाल रखा है, और हर एक आइट्रेशन पे क्या हो रहा है? i -1 हो रहा है, तो ये वाला -1 ये डाल रखा है। हो गया क्या? 4 - i से वो इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 0 से, वैसे इसको चाहे उल्टा भी चला दो तो नंबर तो उतना ही होंगे ना। अगर आप इसको 4 - i करोगे तो ये चलेगा 0 से 4 - i तक, तो उतनी बारी चल गया ना, इतने में भी उतनी बारी चला है। हम यहाँ पे 4 से 0 जा रहे हैं, यहाँ 0 से 4 तक चलो, तो बात वही है, क्योंकि नंबर ऑफ आइट्रेशन करनी है, चाहे सीधी गिनती गिन लो चाहे उल्टी गिनती गिन लो। नहीं लो, नोट कर लो भैया स्टार पैटर्न्स होमवर्क के लिए। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 दूसरा
ये तुम्हारा सारा जिंदगी अरे स्टार मानो यार। गलती करवा दी ना तुम लोगों ने मेरे से। तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूं। एक बर्फी और बनवाएंगे यार तुमसे। लो क्वेश्चन नोट कर लो। ये सारे स्पेस हैं, ये सारे स्पेस हैं, ये सारे स्पेस हैं, ये सारे स्पेस हैं, ये भी स्पेस है और ये भी स्पेस है। स्पेस का पिरामिड हो गया बेसिकली। और किसी को कोई हिंट चाहिए क्या? अरे समझ आ गया सब उसको। किसी को डाउट है? प्रवीण, ठीक है फिर क्लास ओवर।